ناظرین، عبدالحادی قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں الفرابی اسلامک اسکول اینڈ کالجز میں، اور یہاں پر موجود ہے افتخار علی حیدر صاحب، چیئرمین ہے الفرابی اسلامک اسکول اینڈ کالجز کے۔ ایک شاندار اور پرمسرت تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عمرے کے ٹکٹس یہاں پر دیے گئے ہیں، ٹیچرس کو جو ہے وہ کیش پرائز دیے گئے ہیں۔ آئیے ان سے اس تقریب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، پہلے تو آپ کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ آپ نے عمرے پر بھیجنے کے لیے ٹیچرس کو اور دیگر لوگوں کو ٹکٹس دیے، تو یہ عمرے کی ٹکٹس لینے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور اتنا فنڈ آپ کے پاس کیسے اکٹھا ہوتا ہے کہ ٹیچرس کو بھیج دیں؟ کیونکہ لوگ تو اپنا پورا سرمایہ، اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دیتی ہیں اور وہ عمرے پہ نہیں جا پاتے، اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، الفرابی اسلامک اسکولز اینڈ کالجز میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارا پورے سال کا ایک کیلنڈر بنا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے 2010 سے پلان کیا تھا کہ ہم بچوں کو، ٹیچرز کو، ہیڈز کو، جب ہماری بہت ساری فرینچائزز بن جائیں گی، برانچز بن جائیں گی، تو اس طرح کی ہم موٹیویشن بھی دیں گے، ایوارڈ بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور مہربانی سے ہماری دعاؤں کو سنا بھی، ہم نے ساتھ ساتھ محنت بھی کی۔ ظاہر ہے جدائی دور میں ہمارے لیے بھی بے شمار مشکلات تھی، اور ابھی مشکلات ہیں جیسے آپ نے فرمایا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کی مدد لیتے ہیں تو رحمان آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہوئے ہم نے اس کام کو شروع کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کام شروع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا ایک اہتمام شروع کیا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 کروڑ دفعہ ہم نے اس سال درود پاک بھی پڑھا ہے، بچوں نے، ٹیچرز نے اور اداروں نے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا وہ کرم ہے اور وہ ریفرنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھنے کا۔ اس کیلنڈر کو ہم ہر مہینے کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس مہینے میں جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ہم ان کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی ٹیچرز کنونشن جو آپ نے دیکھا، وہ بھی اس کیلنڈر کے اس پورے سال کی ایک کڑی ہے۔ اس میں ہم نے، جیسے آپ نے دیکھا کہ عمرہ کے ٹکٹ دیے، ہم نے لیپ ٹاپ بچوں کو ایوارڈ کیے 90% سے اوپر میٹرک میں پاس کرنے والے، اور ان کے لیے جن لوگوں نے آگے بڑھنا ہے ڈیجیٹل کے حوالے سے، ان کو بھی ہم نے یہاں پہ ٹریننگ دینی ہے، اور پھر فرینچائز کے حوالے سے۔ جو آپ نے عمرہ کی بات کی، ہم نے پہلے 3 سال جو ہے نا وہ اپنے جیب سے دیا، کہیں سے ہم نے کٹ لگایا اور اس کو پورا کیا۔ اس دفعہ آپ کے لیے یہ خوشائند بات ہے کہ ہمارے وہ مہربان دوست جو بہت عرصے سے ہمارے سفر میں شامل ہیں، کچھ ہماری ٹیچرز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد دی ہے، تو 3 ٹکٹ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں اپنے والدین کے لیے، جن کے والدین مائیں مر گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے 3 ٹکٹ اس دفعہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیے ہیں اس ادارے۔ سر، ہمارے ناظرین کا سوال ہے کہ لیپ ٹاپ دینے کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ بڑا مہنگا لیپ ٹاپ ہے، غریب بچوں کے والدین جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن الفرابی کی یہ روایت رہی ہے کہ پچھلے سال جو ہے لیپ ٹاپس دیے گئے، اس سال بھی بڑے مہنگے لیپ ٹاپس دیے گئے، بڑے اچھے لیپ ٹاپس دیے گئے، تو کس کرائیٹیریا پہ، کس اہلیت کے مطابق دیے جاتے ہیں؟ اور کیونکہ بچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے تعلیم میں بھی آسانی ہوتی ہے، تو لیپ ٹاپ دینے کے حوالے سے یہ خیال کیسے ہے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اس کے اوپر بھی ہم نے 2014-15 میں باقاعدہ پلان کیا کہ ہم بچوں کو 6ٹھی-7ویں کلاس سے ہی موٹیویٹ کریں اور ان کو ترغیب دیں کہ ہم آپ کو، اگر آپ 9th 10th فیڈرل بورڈ میں آپ 90% یا اس سے اوپر مارکس لیتے ہیں تو ہم آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے اور کیش پرائز بھی دیں گے۔ اور پھر 9th کلاس سے ہی ہم نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ کے مارکس 90% آتے ہیں تو ہم آپ کو 4 سال کی فری ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہم آپ کو دیں گے، یعنی 10th کلاس، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹرک میں اگر وہ 90% یا اس سے اوپر مارکس لیتے ہیں تو ہم انہیں لیپ ٹاپ ایوارڈ کریں گے، تاکہ اس کو FSC میں آج کی جو ضرورت ہے لیپ ٹاپ، تو وہ والدین کے اوپر بوجھ نہ بنے بلکہ ادارہ اس کو ایوارڈ کرے اور فری ایجوکیشن بھی۔ جماعت اسلامی کے ساتھ کیسا لنک ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا اس اتنے اچھے کاموں پہ کیا کسی سرکاری ادارے نے، MLA MPA نے یا کسی سینیٹر نے آپ کی پذیرائی کی، یا انہوں نے آپ کو فنڈ دینے کا کوئی اعلان کیا؟ حکومتی سطح پر کیا الفرابی کی کوئی پذیرائی اب تک ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ الفرابی اسلامک اسکولز اینڈ کالجز خود ایک نام سے معروف ہے اللہ کی مہربانی سے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کاموں کو اپنی ہمت سے اس لیول پہ لے کے گئے کہ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے پاس ایجوکیشن منسٹر جو فیڈرل منسٹر ہیں بلیغ الرحمان، پچھلی گورنمنٹ میں جو رہے ہیں اپنا PMLN کے، وہ فیڈرل منسٹر خود ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم نے یہاں پہ پاکستان کا پائلٹ پروجیکٹ کیا ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے، اور یہاں پہ ہم نے ٹیچرز کو اور ہیڈز کو ٹرین کیا گلگت بلتستان، وزیرستان اور AJK کے اندر 12 اسکولوں کو ہم نے ٹرین کیا، ایک تو وہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے سارے لوگوں کے لیے
सारे लोगों को के साथ हमने मिलकर के काम किया, जिसमें ब्लेंडिंग लर्निंग के ऊपर हमने नार्वे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर के काम किया, और वो पहला हमारा प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान में। इसी तरह से अभी जो डीजी यूथ के हवाले से आपने देखा और सुना, वो भी एक पहला प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जो अल-फराबी इस्लामिक स्कूल है। लेकिन डीजी स्किल्स यूथ में तालिब इल्म कैसे दाखिला ले सकते हैं, और इसमें तालिब इल्मों को ट्रेनिंग देने का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या इंटरनेट के ज़रिए लोग घर बैठे जो तालीम हासिल कर सकेंगे, या उनको जो अल-फराबी के कैंपसेस में आना पड़ेगा? देखिए, पहले फेज़ में हमने 50,000 खुल्द फाउंडेशन के साथ, जमात इस्लामी के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इस्लामाबाद सेंटर के अंदर, और इसका मॉडल ये है कि हम पहले रजिस्टर करेंगे डीजी यूथ की वेब पे जा कर के, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे मौजूद है। 9th क्लास से लेके 38 ईयर्स ओल्ड तक बच्चियाँ और बच्चे इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। हम इनका एक टेस्ट लेंगे एक बड़े लेवल पे, और उस टेस्ट के बाद फिर हम इनको 6 महीने तक ट्रेन करेंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन पहले फेज़ में इन्हें फ़िज़िकली इदारों के अंदर आना होगा। हमारे 3 औकात कार होंगे, एक मॉर्निंग टाइम होगा, एक दिन का वक्त होगा, और आफ्टरनून का शाम का वक्त होगा। सर, लास्ट मेरा सवाल है, मुस्तक़बिल का क्या लाएअमल होगा? आप अल-फराबी स्कूल को कहाँ, किस मुकाम पर देख रहे हैं, कहाँ आप इसे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आपने दीन इस्लाम के हवाले से, इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से बहुत काम किया है, तो आपका क्या सोच है, क्या नज़रिया है कि ये अल-फराबी स्कूल कहाँ तक जाए, कहाँ तक तरक्की करे? देखें जी, हम अब बिल्कुल खुली आंखों से इस बात को पहले दिन से एक मॉडल बना चुके हैं, अपनी मंजिल को देख चुके हैं, और उसी के ऊपर हम उसी रास्ते पे चल चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, किसी सूबे तक इसकी क़ैदोबंद नहीं होगी पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी हम इसको लेके जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम अपना ये मॉडल इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से पिंडी डिवीज़न, और फिर सूबों तक रेप्लिकेट करेंगे इसको। इस वक्त जो है ना, 23-24 में हमारा प्रोग्राम यह है कि हम 100 ब्रांचेस जो है ना वो फ्रेंचाइज़ के तौर पर देंगे अपने गिरदोनवा के सारे इलाकों के अंदर। उसके साथ साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें हम बच्चों को काम सिखाएंगे भी और वहीं पे वो काम करेंगे भी, ताकि उसके अर्निंग का भी एक ज़रिया बन जाए, और वहाँ पे वो काम सीख करके मुल्क के अंदर भी काम कर सकें और मुल्क के बाहर जा सकें। सवाल से सवाल नहीं करना, फिर आखिरी सवाल, क्या समझती हैं कि ये जो डीजी यूथ प्रोग्राम है, इससे बेरोज़गारी का खात्मा अल-फराबी इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ नारे देती है, लेकिन जब बच्चे यहाँ से जो तालीम हासिल करेंगे, स्किल्स हासिल करेंगे, तो जो बेरोज़गार भी होंगे तो उन्हें रोज़गार मिलने में आसानी होगी। देखिए जी, ये बड़ा आसान काम था रियासत के लिए और रियासती इदारों के लिए, जो अल-फराबी इस्लामिक स्कूल, अल-कमल फाउंडेशन, इस तरह के इदारों ने अपने सर लिया हुआ है, और ख़ुद पब्लिक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तालीम का, जैसे बेड़ा आप देखते हैं, 2.5 से 3 करोड़ बच्चों का बेड़ा अपने सर लिया हुआ है, और बड़ी मुश्किल से इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है, और हमने इसको पॉसिबल करके दिखाना है। हमने कराची के अंदर 75,000 बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ 50,000 का मरान दिया है, 50,000 से ज़्यादा को हम लेकर के चलेंगे। आप देखें जी कि जब ये बच्चे, आज हमारे बच्चों की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और बड़ी प्रोफिशेंसी है आईटी के अंदर भी, लेकिन कमी इस बात की है कि उनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। हमने उसके पहला मॉडल इसीलिए रखा है कि हम उन्हें गाइडलाइन देंगे, ट्रेन करेंगे, और फिर जॉब भी देंगे, और बताएंगे कि कौन कौन से एरिए में कैसे कैसे आप अपनी अपनी कंपनी में रजिस्टर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आपके ही न्यूज़ चैनल से हम आपके इसको रेप्लिकेट और पब्लिकेट भी करेंगे, और आप खुद मौजूद होंगे जब बच्चे ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त, वेरी मच। इस तरह के लोग होते हैं जो पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इफ्तिखार अली हैदर साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को उनको ये पैगाम दिया है कि अगर बंदा अज़म कर ले, इरादा कर ले, तो उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। किसी नए इंटरव्यू के साथ हाजिर होते हैं। अब्दुल हादी कुरैशी, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, अल-फराबी इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेजेस पे मौजूद हूँ। हाफिज़ कलीमुल्लाह साहब मौजूद है, जिनका उम्रे का टिकट निकला है। कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? इससे पहले क्या फीलिंग्स थी, जब अनाउंसमेंट हुई तब क्या फीलिंग्स हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत मैं अपनी जो खुशी है उसका इजहार नहीं कर पा रहा कि एक चीज़ के बारे में जब आप ज़हनी तौर पर तैयार ना हो और वो चीज़ और फिर अल्लाह अपने घर में बुला ले तो बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत थी तमाम असातिज़ा की भी कि जो हमारी ये टिकट निकला, ये जस्ट उसके ऊपर नहीं था कि कुरानंदाजी के ऊपर, ये था कि पूरे साल जो टीचर्स ने मेहनत की और वो जो ग्रेड दिए गए और 25 ब्रांचेस में से तो पहली पोजीशन हमारी ब्रांच की थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट मिला, तो बहुत खुश हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी कौन सी मेहनत रंग ले आई है? किस मेहनत की वजह से उम्रे का टिकट आया? चूँकि कोई टीचर से कोई ना कोई मेहनत होती है, कोई टास्क किया होता है। यहाँ पर दो बातें आपसे कहूँगा कि जो मैनेजमेंट थी, और मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है तो फिर आपकी जो
टीचिंग है वो लाजिम बात है बेहतरीन होगी। जब टीचिंग आपकी बेहतरीन होगी तो स्टूडेंट्स आपकी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। जब स्टूडेंट्स अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो लाजिम बात है कि वो रिजल्ट शो करेंगे, और रिजल्ट शो करने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये रिवॉर्ड मिला। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के दीगर तालीमी इदारों को क्या पैगाम देंगे? उम्रा टिकट्स दें और दरूद शरीफ का जिस तरह का एहतमाम किया जाता जैसे है। हमने बताया कि हर पीरियड के आगाज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो दरूद इब्राहिमी से होती है। मैं तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हम हर अपनी मीटिंग के अंदर ये बात भी करते हैं और हमारे साथ जो स्कूल जुड़ेंगे उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि हमने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम की तरफ गिरागत करना है। अल-फराबी इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेजेस का जो मोटो है वो यही है। लोगों की ख्वाहिश होती है उम्रे पे जाएं, दीदार रसूल करें, तो आपकी कितनी ख्वाहिश रही है और आपने क्या अपनी तनख्वाह में से उम्रे पर जाने के लिए कोई हिस्सा जोड़ते थे कि ये टिकट के लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ? ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है, सिर्फ मेरी नहीं, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उन गलियों में जाना उसको नसीब हो जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा है। तो लाजिम बात है कि होता हर इंसान की ख्वाहिश होती है और बड़े आनंद की बात है। मेरा लास्ट सवाल है कि इफ्तिखार अली हैदर साहब को क्या पैगाम देंगे? उम्रे का टिकट आपका मिल चुका है, पहले कुछ और मराहिल थे, कुछ और मामलात थे, अब आप जो है उम्रे पर जाने वाले बन गए। के साथ हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, और जिस तरह वो माशाल्लाह लेकर चलते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को, हम भी उनके स्टाफ मेंबर्स में से ही हैं, लेकिन जो डायरेक्शन वो देते हैं वो आउटस्टैंडिंग, उसके बारे में जितने भी अल्फाज किए जाएँ वो काम। बहुत शुक्रिया सर, सोना सफ यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फैसला लेना जानता है, डिसीजन पावर, ऐसे इखलाक कहते हैं, इंसानी बुनियादी इखलाक। एक एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि बच्चे को इन एंगल से निखारे। चौथा क्या है, उसके अंदर मैनेजरियली और ऑर्गेनाइजेशनली दोनों स्किल्स होनी चाहिए। ये 4 कंपोनेंट है। इस मैनेजमेंट से मुराद भी इवेंट मैनेजमेंट नहीं, कुर्सियां लगा देनी। इससे मुराद क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट है। इससे मुराद इमोशन मैनेजमेंट है। इससे मुराद हेल्थ मैनेजमेंट है। इससे मुराद जो है वो आपकी पूरी टाइम मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट है, कैपिटल मैनेजमेंट है, रिसोर्स और जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये सारी की सारी मैनेजमेंट इसमें शामिल है। अगर एक एजुकेशन सिस्टम साइकोलॉजी